ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੇ। ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਮੰਗ ਸੀ, ਹੁਲਾਸ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਚਾਹ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਢ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਸੀ, ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਖੜ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 27 ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵਰੀਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਖੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਉਖੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਤੇ 29 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਰਾਨੀ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ, ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਉਸ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਸਿੱਧਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸੀ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋਰਦੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਐਫਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ 7 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਉਖੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੋੜਿਆ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰੇਡ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰੀੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਦਫੇੜ ਸੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਔਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ
संघर्ष दीयां सारियां धिरां ने संघर्ष वाल मूँह किया। और उस दिन गुरु महाराज जी हजूरी विच खड़े होके जिहड़ियां साडियां लड़ रहीआं जां जिहड़ियां किसान जथेबंदियां दे आगूआं ने कहा कि बाबा जी असीं 1.5 महीना एक दूजे नाल गल नहीं कीती, असीं इकट्ठे नहीं होए, जे होए हैं तो एक दूजे ते इल्ज़ाम लाए ने। अज पहली वारी है कि तुहाडी कोशिश दा सदका असीं इकट्ठे होए हां और असीं तुहानूं यकीन दिवाउने हां कि असीं अज तो बाद साडा कोई वखरेवा इस संघर्ष दे आड़े नहीं आएगा। असीं संघर्ष नूं जितण वास्ते जो भी साडे तन मन धन साडे एफर्ट्स लगणगे असीं लावांगे, असीं तुहानूं निराश नहीं करांगे। और मैं उस अकाल पुरख का शुक्रिया अदा करदा हाँ कि जिस संकल्प नाल मैं वापस आया सी उस दे पहले ही पड़ाव से महाराज ने एड्डी वड्डी जित मेरी झोली विच पाई तो मैं संघर्ष नूं अगे तोड़न वास्ते हौसला अपने विच पैदा कर सकिया और मैं अगे वधिया। और तुसीं जाणदे हो 7 मार्च तो बाद सारे हालात बदले, सारियां जिहड़ियां उत्थे जिहड़ियां आपस विच धिरां सी उन्हां विच प्यार इतफाक और भरोसा पैदा होया। और अज आपां सारे जानते हैं कि अज संघर्ष फिर अपने पैरों पर खड़ा है। उस तो बाद दूजा जिहड़ा सब तो वड्डा नैरेटिव सी उस नौजवानों वास्ते कि एक नैरेटिव सी कि नौजवान नाराज़ होकर इस पंथक मोर्चे तो घरां नूं वापस चला गया है और वो किसान लीडरशिप के नाल अज नहीं खड़ा, जिहड़ा सरकार नूं वारा खांदा सी, सरकार का सिरजा होया नैरेटिव सी। और किसी हद तक हकीकत भी सी कि 26 जनवरी दीयां घटनावां तो बाद जिस तरह का नौजवानों नाल व्यवहार होया साडी लीडरशिप वालों, जिस तरह का उन्हां ते इल्ज़ाम लाए गए, वो निश्चित सी कि उन्हां दे हौसले तोड़दा सी, उन्हां दी नाराज़गी वधाउंदा सी। पर मैं फिर नौजवानों नाल मिलना शुरू किया, उन्होंने मुखातिब होया। मैं उन्हां सारियां दे सामने जदों ये वास्ता पाया कि अपने सारे संघर्ष दीयां प्राप्तियां मिट्टी विच मिल जाणगियां जे अज आपां निजी अपनी हौमे या अपने सत्कार माण की गल नूं अगे रखिया। अज साडा सब तो पहला काम है कि असीं उस संघर्ष नूं सामने रखीए, क्योंकि जे असीं संघर्ष जितदे हाँ तो फिर ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां गौण हो जाणगियां। जे असीं संघर्ष हारदे हाँ तो साडा जिहड़ी ना कोई साडा मान, ना कोई साडा सम्मान, ना स्वैमान, कुछ नहीं बचना। तो नौजवानों का भी मैं धन्नवाद करदा हाँ कि उन्होंने भी मेरे नाल गल्लां सुनन तो बाद मेरे नाल खड़े होए। और जिहड़ा उन्होंने मेरे नाल 26 जनवरी की रात बाद शाम नूं गाजीपुर की स्टेज पर किया सी कि बापू एक नवरीत गया है, असीं सारे नवरीत तेरे नाल खड़े हाँ। उन्होंने वो वादा निभाया और अज मैं वेखदा हूँ कि सारे नवरीत मेरे नाल खड़े। अज मैं बहुत दूर सीगा जदों मैनूं पता लगा कि आनंदपुर की धरती से एक बहुत बड़ा सम्मेलन नौजवानों का होने जा रहा है, जिसकी अगवाई सरदार जोगराज सिंह करन जा रहे हैं। और मेरा दूसरा प्रोग्राम भी सी, मैं तरजीह तय करनी सी कि मैं कित्थे जाना है। मैं इस प्रोग्राम नूं तरजीह दी क्योंकि इस प्रोग्राम की अगवाई कर रही जिहड़ी शख्सियत है, मैं शुरू तो देख रहा हाँ कि उन्हां दा इस मोर्चे प्रति की लगाव है, की कमिटमेंट है और किस तरह वो अपनी जिंदगी के इस पड़ाव के उत्ते इस मोर्चे नूं हर तरह नाल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं अज इत्थे आउणा तय किया। और इस दे नाल मैनूं जदों पता लगा कि इस मंच के उत्ते बहुत सारे वो संगीतकार नौजवान आ रहे हैं जिन्हां ने इस संघर्ष नूं इस मुकाम ते लैके आंदा, मैं उन्हां नूं भी कुछ कहना चाहुंदा सी अज, क्योंकि 26 जनवरी तो पहलां दी उन्हां दी जिहड़ी शमूलीयत है और 26 जनवरी तो बाद की जिहड़ी शमूलीयत उहदे विच फर्क आया है। और मैं उन्हां नूं ये कहण आया है कि जिहो जी तुहाडी शमूलीयत 26 जनवरी तो पहलां दी सी, तुहाडी शमूलीयत उस तो भी ज़्यादा शिद्दत नाल होनी चाहिए है, क्योंकि अज मोर्चे नूं तुहाडी शमूलीयत की उस तो भी ज़्यादा जरूरत है। क्योंकि साडा नौजवान तुहानूं अपना आइडियल मनदा है। तुसीं चाहे पंजाब के नौजवानों नूं नच्चण लाता, गाउण लाता, नत्तियां पवातियां, सब कुछ करता, उन्होंने सब कुछ किया, पर तुसीं मोड़ा कटवाया नौजवानों नूं। अज वो नौजवान नशियां तो बाहर आया, उन्होंने कमिटमेंट बदली, वो अपने इतिहास नाल खड़े हुए, अपने फर्ज पछाणे और अज मोर्चे की रीढ़ की हड्डी बन के खड़े आ। इसलिए मैं तुहाडे उस एफर्ट नूं मैं अपने वालों ये कहना चाहता हाँ कि जे अज ये अंदोलन है तो वो सब तो वड्डा जे किसी का योगदान है तो इन्हां गायकों का है जिन्हां दी बदौलत अज ये संघर्ष खड़ा है। क्योंकि मैं पिछला संघर्ष भी वेख्या सी, उस संघर्ष में जिहड़ा रोल साडे ढाडियां दा सी वो रोल इन्हां गायकों ने इस वाल प्ले किया है।
इन्हों ने संघर्ष खड़ा किया है। और मैं इन्होंने ये कहन आया हाँ कि 26 जनवरी तो पहला जिस तरह तुहाडा रोल सी, अज इस संघर्ष नूं उस तो भी ज़्यादा तुहाडे रोल की लोड़ है। और दूसरी गल मैं जिहड़ी ये कहन आया हाँ कि जिस तरह का आने वाले सामने साडा सिनैरीओ है, राजनीतिक सिनैरीओ जिहड़ा बनदा जा रहा असीं वेख रहे हाँ, और जिस दे विच मैं ये अपील उत्थे बंगे भी सुनी सी योगराज सिंह होना दी, जदों इन्होंने कहा सी कोई पार्टी बनाओ इलैक्शन लड़ो, और मैं हमायती हाँ इस अपील का, मैं इसकी हमायत करना आया इस अपील की। जे इन्ने वड्डे संघर्ष दे विचों उन्हां अरमानां दी तर्जमानी करदी कोई पार्टी वजूद विच ना आई तो फिर दोष ना दिओ किसी नौजवान नूं या किसी होर नूं कि वह अकालियां नाल चले गए, वो कांग्रेसियां नाल चले गए, वो आम आदमी पार्टी नाल चले गए। उन्हें चले जाना फिर जदों तुसीं उन्हां नूं कोई राह ना दोगे, कोई मंच ना दोगे, कोई सेध ना दोगे, वो चले जाणगे। इसलिए जे कोई इहो जी पार्टी बनती है जिहड़ी इस वेले की मंग है, जिहड़ी वो नौजवानों की मंग है, जिहड़ी उन्हां दी तर्जमानी करे, वो बनाउणी चाहीदी है। मैं इसकी हमायत करना है। और योगराज सिंह जी जिथे भी कहेंगे, जदों भी कोई पार्टी बनाउणगे, जो जिम्मेवारी मेरे जुम्मे लाउणगे, मैं इन्हां दे नाल खड़ा होवांगा, मैं कहना है। इसलिए तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। तुसीं सुनिया, सानूं मैनूं सुनिया। सब तो वध धन्यवाद तुहाडा इस करके कि तुसीं नवरीत दी शहादत नूं जिन्ना मान प्यार सत्कार अपने दिल विच थां दित्ती, और जिस तरह मेरा हौसला तुसीं वधाया, जिस तरह तुसीं मेरी कंड पिछे खड़े होया और मैं खड़ा होया, और उस इतिहास नाल खड़ा होया जिहड़ा इतिहास मेरे गुरु पातशाह ने अपनी 4 साहिबजादियां दी शहादत नाल शुरू किया, और उस तो बाद साडे ਸਿੰਘਾਂ ने अपने परिवारां दियां अपने बच्चों दी आहूतियां दे के किया। बंदा सिंह बहादुर के परिवार की शहादत, उन्होंने बच्चों की शहादत, और लगातार सिलसिला है शहादतां दा। जिस दिन मैं नवरीत के शरीर के सराहने खड़ा सी तो मैं सोच रहा सी कितनी लम्मी लैन है शहादतां दी। 1984 तो बाद तो मैं खुद वेख रहा सी ना कि 84 तो बाद जिहड़ा 10 साल का दौर सी, जिहदे विच पंजाब दे चढ़दी जवानी के नौजवान मुछफुट गभरू जो मेरे कोलों गए और वापस नहीं आए, और अज उन्होंने परिवारों के विच जिन्हां घरां दे विच घाह उग्या होया है, वो परिवार भी अज तुहाडे वल उम्मीद नाल वेखदे ने, क्योंकि बड़े लंबे समय बाद एक समा आया है जदों इस देश ने पंजाब की अगवाई कबूल की है, खासकर सिखां की अगवाई कबूल की। अज ये संघर्ष किसी नाल लड़िया जा रहा होवे, पर जे यदि चर्चा है तो सिर्फ ये है कि ये सिखां दा संघर्ष है। इसलिए तुहाडी दस्तार दा मान सम्मान दा ते लगा है। इसलिए घरां च बहन दा समा नहीं है। हुण अपनियां फसलां साਂਭਣੀਆਂ भी जरूरी हैं, परिवार संभालने भी जरूरी हैं, पर पहली जिम्मेवारी तुहाडी सारिਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ है उस संघर्ष नाल जाना, उत्थे जाना, उत्थे बहना, उत्थे जुड़ना। क्योंकि जिन्ना चिर लीडर की कंड ते उसकी कौम उसके पिछे खड़े हुए लोग नहीं खड़े होंदे, जिन्हां दे सरोकार ने संघर्ष नाल, ते लीडर कमज़ोर पै जाते हैं, समझौते कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए जे कोई समझौता होना, सरकार ने तुहानूं कुछ देना, इस संघर्ष के अगे गोडे टेकने हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ तुसीं हो। इसलिए मैं कहना आया हाँ कि वध तो वध गिनती में उस संघर्ष के पिछे खड़े हो, उस लीडरशिप के पिछे खड़े हो, क्योंकि बहुत तरह के नैरेटिव ने उत्थे, बड़े तरह दी गल्लां आपां सुणदे ने, पर वो सुर जिहड़े आपां सुणदे ने ना, वक्खरे सुर, उन्हां दे वक्खरे जिन्हां दे एजेंडे ने, वो थोड़े जे लोग ने, वो पंथक चिरां वाल भी हैगे, वो कामरेडां वाल भी हैगे, वो बाले नहीं हैगे। बत्तियां विचों जे कोई 5-4 इहो जे हैगे ने जे वक्खरी सुर अलापदे ने, उन्हां नूं नज़रअंदाज कर दो, तो जेड़े 28-30 लोग सुहिरद ने इस संघर्ष में जितना चाहते, उन्होंने स्ट्रेंथ बनाओ, उन्होंने पावर बनाओ, उन्होंने पिठ के पिछे खड़े हो, ताकि उन्होंने हौसला मिले और ये लड़ाई जित के सानू दें। इसलिए मैं एक बार फिर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद करदा हाँ, खास करके सरदार जोगराज सिंह उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अज मंच एक मौका मुहैया फरमाया और मैं इत्थे खड़ा होया। मैं गल कह के जावांगा, एक नक्सलाइट मूवमेंट का एक गीत मैं कदी कदी सुनिया करता सी, फिक्का रहे क्यों आनंदपुर का रंग जदों दिल्ली का रंग हो। मैं अज भी वही वेख, दिल्ली का रंग अज भी वही है, जुल्म का रंग, वही है जालम का रंग।
पर आनंदपुर का रंग क्यों फिर फिक्का है भाई? इसलिए मैं कहन आया हाँ कि फिक्का रहे क्यों आनंदपुर का रंग, जदों दिल्ली का रंग उही है जुल्म का रंग, उही है जालम का रंग, जालम की तलवार का रंग उही है। तो फिर फिक्का क्यों रहे आनंदपुर का रंग, फिक्का क्यों रहे आनंदपुर का रंग? मैं तुहानूं कहण आया हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।